We mostly choose to visit places where we can do some adventure, some luxury stays, head out for a thrilling ride. But have you ever planned or visited a place where you can just relax in the silence of peace and spirituality? A place with cultural, traditional roots of our history. This time, I will take you on a beautiful journey to the holiest city and one of four dhams in India, Orissa. Orissa is an eastern India state on the Bay of Bengal and is known for its famous ancient Hindu temples, tribal cultures, delicious Odissi food, and its vast beaches. I started this trip with my family and first day में हम पहुँचे from प्रयागराज to भुवनेश्वर. हमारी फ्लाइट थी at 12 PM और हम भुवनेश्वर पहुँचे around 2 PM. हमने उठाया सामान और अपनी टेम्पो ट्रेवलर से जो हमने पहले से ही बुक कर रखी थी उससे निकल पड़े अपनी फर्स्ट डे की डेस्टिनेशंस को कवर करने के लिए. भुवनेश्वर इज एन एंशिएंट सिटी एंड कैपिटल ऑफ ओडिशा. It is famous for its temples built in 10th and 11th century and its beautiful architecture, one that you won't find in any other place in India. भुवनेश्वर में हम सबसे पहले पहुंचे वहाँ के सबसे फेमस एंड होली टेम्पल लिंगराज टेम्पल को विजिट करने के लिए. ये टेम्पल ओडिशा के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है. यहाँ भगवान शिव और विष्णु साथ में विराजमान हैं और इसीलिए ये वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी माना जाता है. Mobile phones are strictly prohibited inside the temple premises, so you have to submit your phones and purses outside the temple only. टेम्पल के अंदर पहुंचने पे हमने लिया एक गाइड जिन्होंने हमें इस एंशिएंट टेम्पल की हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, सम अननोन फैक्ट्स के बारे में काफ़ी जानकारी दी. यहाँ पे टोटल 107 छोटे छोटे मंदिर बने हैं जो कि कलिंगा आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये लॉर्ड विश्वकर्मा ने बनाए थे. हमने किए शिवलिंग और भगवान विष्णु के दर्शन, भोग लगा हुआ प्रसाद खाया और यहाँ की शांति भरे वातावरण में कुछ समय बिताया. आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे किसी भी एंशिएंट टेम्पल या प्लेस को विजिट करें तो गाइड ज़रूर लें क्योंकि वो आपको उस प्लेस की हिस्ट्री, कुछ रहस्य के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे आपके विजिट करने का मज़ा और भी बढ़ जाता है. मंदिर से बाहर निकल के हमें मिली काफ़ी तेज़ बारिश जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिली और हम निकले अपनी दूसरी डेस्टिनेशन को कवर करने के लिए जो थी मुक्तेश्वर टेम्पल. मुक्तेश्वर टेम्पल इज़ अ 10th century temple dedicated to Lord Shiva. The architecture and beauty of this place depicts the holiness and spirituality of its own kind. We stayed there for some time witnessing the sculpture work and intricate carvings all over the temple premise. The next place in row to visit was Raja Rani Temple, which is another gem from the history of Orissa. The temple is dedicated to Lord Vishnu and this temple is also known as Love Temple as told to us by the local guide. भुवनेश्वर एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जो अपने होली टेम्पल्स के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ अराउंड 700 टेम्पल्स हैं which gives it the name City of Temples. इनमें से 3 टेम्पल लिंगराज, मुक्तेश्वर और राजा रानी सबसे पॉपुलर हैं और आप इन्हें बिल्कुल स्किप मत करना इफ यू एवर प्लान टू विजिट टू दिस होली सिटी. Next, we move to another popular attraction in terms of history and beauty, which is located around 8 kilometers from Bhubaneswar, Dhauli Shanti Stoop. Dhauli Shanti Stoop was built by Kalinga Nippon Buddha Sangha and it symbolizes the birth of Lord Buddha. This place is located on Dhauli Hill and once you come here, you will witness the beauty of the temple along with a wide view of whole Bhubaneswar city. Come here and spend some time in the silence and warmth of this place and meanwhile you can also click some aesthetic pictures. अब काफ़ी शाम हो गई थी और हमें पहुंचना था पुरी श्री जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए तो हंसते गाते और मस्ती करते हम पहुंचे पुरी which is a coastal city and home to Lord Jagannath. We checked in our room which was in a sea-facing hotel from where we can have the direct view of Puri's famous golden beach and experience the beauty and warmth of the great ocean. कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम चले कुछ 700 मीटर पैदल जगन्नाथ टेम्पल पहुंचने के लिए. हमारा होटल सिर्फ बीच के पास ही नहीं
टेम्पल से भी कुछ 2 किलोमीटर ही दूर था, जिससे हमें टेम्पल पहुंचने में काफ़ी आसानी हुई, क्योंकि कुछ दूर ही पैदल चल के हम आसानी से टेम्पल पहुंच सकते थे। हमारे लोकल गाइड ने हमें मंदिर के धर्म द्वार से एंट्री करवाई, जो 4 द्वारों में से एक है और इसके अलावा किसी भी द्वार से एंट्री फॉर टूरिस्ट मना है। फिर अंदर पहुंच के हमें भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भगवान बालभद्र के सुंदर और मनमोहक दर्शन करने का अवसर मिला। कहा जाता है अगर आप जगन्नाथपुरी आते हैं तो यहाँ अन्नदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। अगर आपको अन्नदान करना है तो आप मंदिर के अंदर किसी से भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे अन्नदान करने का क्या तरीका है, और आप अपनी श्रद्धा से अन्नदान कर सकते हैं। भगवान के इतने सुंदर दर्शन करने के बाद हमें यहाँ का महाप्रसाद खाने का सौभाग्य मिला। इस प्रसाद में दालमा, चावल और कुछ 6 अलग अलग तरीके के भोग थे। जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में तो आपने कई रहस्य सुने होंगे। यही रहस्य और बातें हमारे लोकल गाइड ने हमें मंदिर में बैठ के बताई, जिससे इस मंदिर पे विश्वास और भी बढ़ गया। ऐसे ही कुछ समय वहां बिता के, वहां की शांति में बैठकर और वहां की भक्ति में लीन होकर हमने अपना पहला दिन पुरी में खत्म किया। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगी हमारी आगे की डेस्टिनेशन, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करिए, ताकि मुझे आपके लिए नेक्स्ट वीक भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शो सम लव।